Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anu hayati. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. اپنے آپ کو سوچو کیا میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں؟ ٹھیک ہے، چلیں اب اس کے بعد ہم جو ہے وہ اگلی آیتوں پر چلتے ہیں۔ اب اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 217 تقریباً، یہ جو آیت ہے اصل میں اس کے اوپر جو ہے نا ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا، ہم پوری پڑھتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ وہ سب آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ دیکھو انس شہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے بارے میں کہ اس میں لڑنا کیسا ہے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے لڑنا اس میں تو بہت بری بات ہے، اچھا ٹھیک ہے، اور روکنا اللہ کے راستے سے، اور جو اس کے بعد ہے اس میں جو ہے وہ اس کا انکار کرنا اللہ کے راستے کا، مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو یعنی مکہ والوں کو وہاں سے نکالنا، تو بھائی اس جنگ سے بھی زیادہ بڑی بات ہے اللہ کے نزدیک، اور کتنا زیادہ بڑی بات ہے قتل سے، اور اکثر تم ان کو پاؤ گے لڑتے بھیڑتے یہاں تک کہ وہ کیا کر دے، پھیر دے تم کو تمہارے ہی دین سے اگر وہ چاہیں، اور جو کوئی بھی پھیر جائے گا تم میں سے، ذرا غور سے سنیے گا آیت کے اس حصے کو، اور جو کوئی بھی کسی کی زور زبردستی سے یا اپنی چوائس سے دین سے پھر جائے گا تم میں سے، فیمت، پھر وہ مر جائے گا، یعنی اسی حال میں مر گیا تو وہ کافر رہے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ضائع کر دیے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں، اور یہی لوگ جہنم والے ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ اکبر، یہ کیا تھا؟ اصل میں نا کچھ جو کافر تھے وہ مسلمانوں سے بھیڑ گئے، صحابہ تھے ان سے بھیڑ گئے، اب وہ لوگ لڑے بھیڑے تو وہ خیر لڑنے بھیڑنے میں ایک قتل ہو گیا تھا کافروں کا۔ اب وہ لوگ مورچہ لے کے آ گئے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول آپ تو کہتے ہیں حرمت والے مہینے میں جو ہے وہ جنگ نہیں کرنا چاہیے، قتل نہیں کرنا چاہیے، تو آپ کے صحابہ نے دیکھے ایسا ایسا کرے، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں نہیں پتا تھا کہ چاند نکل چکا ہے، رجب کا چاند شاید نکل چکا تھا جبھی، اور صحابہ کو کبھی 29 اور 30 کے کنفیوژن میں تھے، بولے ہمیں نہیں پتا تھا۔ جب آ کے انہوں نے شکایتیں لگائی تو اللہ تعالیٰ نے پوری آیت اتار دی، اچھا میرے اللہ کے رسول کے صحابہ سے ایک غلطی سے قتل ہو گئے تو تم آ کے ادھر کیس لے کے آ گئے اللہ کے رسول کے محفل میں، اور تم لوگ کیا کیا کرے؟ پھر اللہ نے ان کے سارے کارن کو گنوایا، تم مسلمانوں کو مکہ سے نکالتے ہو، تم جو ہے مسجد حرام سے نکالتے ہو، تو یہ سب کتنا تو زیادہ بڑی بات ہے قتل سے، تو ان کے ہی کرتوتوں کو اللہ نے ان پر جو ہے وہ بول کر دکھا دیا، اور اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو مقصد ہے، موٹیو بتا دیا گیا، پتہ ہے تم سے کیوں لڑتے پھرتے ہیں؟ تاکہ تم تمہارے دین سے ہٹ جاؤ، تم چھوڑ دو تمہارے دین کو، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اوپنلی کہہ دیا ٹھیک ہے نا، جاؤ جس کو جانے کا ہے اپنے دین سے پھرنے کا پھر جاؤ، اور اگر وہ کفر کی حالت میں مر گیا تو سارے کرا دھرا اس کا ویسٹ ہو جائے گا، سوچیے سب اس کا ویسٹ ہو جائے گا اور اس کا ٹھکانہ آگ رہے گا۔ یاد رکھیے انسان کا جو خاتمہ ہوتا ہے نا، آگے کا پورا معاملہ اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت دی ہے نا، تو اس کو بڑے سنبھال کے رکھیں، اس اللہ کی نعمت کی ناشکری مت کریے، اور اللہ سے کہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کر، ایمان پر خاتمہ کر، میں اس حال میں مروں کہ مسلمان رہوں، یہ دعائیں اپنے لیے اور اپنے نسلوں کے لیے ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے؟ چلیے اگلی آیت جو ہے اس پر ذرا سا غور کریں، اور غور آپ کو یہ کرنا ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں نا کہ میں بس نماز پڑھ لوں اللہ کی رحمت مجھ پر آ جائے گی، میں یہ کہہ دوں کہ اللہ میں ایمان والی ہوں اللہ کا رحمت مجھ پر آ جائے گا۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں ہم اللہ کی رحمت لینے کے لیے، اللہ کا رحم لینے کے لیے کیا شرائط اللہ نے یہاں پر بیان کیے، یقین کریں شعور کے ساتھ سمجھنے کے بعد نا ایسے شرم آتی ہے خود کو مسلمان کہتے ہوئے، نظریں جھک جاتی ہے اللہ کی کتاب پر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو سنو سنو اے مسلمانوں، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، ٹھیک ہے، یعنی ایمان، ہجرت، اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں خود کو لگایا کھپایا، بہت اسٹرگل کیا۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی لوگ ہیں جو امید رکھ سکتے ہیں اللہ کی رحمت کی، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ اکبر، سوچیے کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ کون لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھ سکتے ہیں؟ امید کی بات کی گئی ہے، یہ تین کام جو لوگ کرتے ہیں نا، ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں،
हिजरतें करते हैं, अपने घर बार को छोड़ते हैं अल्लाह के दीन के लिए। अच्छा, घर बार छोड़ना ऐसा नहीं कि ताला वाला लगा के घर वालों को सबको बाहर कर दिए और भाई संन्यास ले लिया, अब मैं चली टाटा बाय बाय, ये नहीं मामला होना चाहिए। ठीक है, खपाए लगाए। आज देखिए, क्योंकि घर सबसे बड़ा बैरियर बनता है एक इंसान के दीन को आगे ना बढ़ाने का। क्या करे, घर बार है, फैमिली है, मैं कैसे छोड़कर जाऊं, है ना, मेरी सास को पसंद नहीं, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं, मेरे बच्चे, मैं जाऊंगी तो घर में आग ही लगा देंगे। ऐसे फिर कुछ स्टूडेंट मिले तो उनसे बाद में पूछा क्यों नहीं है, क्या करे, बच्चे घर में इतना लड़ते हैं कि मैं यहाँ बैठे रहती हूँ लेकिन फिजिकली यहाँ मेंटली उधर हूँ मैं, ऐसा लगता है घर में लड़ भिड़ के बच्चे आग न लगा दे। ये बोला हुआ जुमला एक माँ का, आती थी हमारे पास पढ़ने को वो, और उसके बाद कभी नहीं दिखी, इतने साल हो गए, 10-12 साल, कभी फिर पलट कर नहीं आई वो। अल्लाह अकबर। तो सोचिए, वो घर जिसको अल्लाह सुकून का जरिया बनाता है, आप उसको इस तरीके से आप चाहेंगे कयामत के दिन आप कहें कि अल्लाह ताला यही वो बच्चे थे मैं जिनकी वजह से दीन पर अमल नहीं कर सकी, तेरे रास्ते में कुछ न कर सकी, यही वो घर था मेरा जो मेरा बैरियर बना हुआ था। अल्लाह अकबर, मैं तो कभी नहीं कर सकती ये सब। मैं क्यों मेरे शौहर को बैरियर बनाऊं, मैं क्यों मेरे बच्चों को, मैं चाहूंगी कि मेरी वजह से मेरे बच्चे मेरे साथ जहन्नम में जाए, नाउज़ बिल्लाह, कभी नहीं। तो कभी भी देखिए, खुद की मर्जी दूसरों पर मत थोपे, खुद को पूछे मैं कितना तैयार हूँ अल्लाह के रास्ते में अपने आप को खपाने को। बंदी खपना तो नहीं चाहती, सास को लगा देगी आगे, अपने हस्बैंड को लगा देगी, ये इनको पसंद नहीं, उनको पसंद नहीं, बच्चों को। अरे आप खुद कितना तैयार है वो तो देखें। आप भी तो निकले, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो लोग हमारे साथी हैं उनके भी शौहर है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो निकल रहे हैं। तो कभी भी इन चीज़ों को रुकावट ना बनाए, बल्कि दुआ किया करे कि अल्लाह जो कुछ भी तूने मुझे दिया इनको मेरा दीन का साथी बना। मांगे अल्लाह से, फिर देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला कैसे जो है मुश्किलात को आसान करता है। और इसी के साथ साथ याद रखें, अगर मैं और आप ये 3 काम करते हैं, खुद को जो है यानी कि हम अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, जद्दोजहद करते हैं, फिर हम कह सकते हैं कि हम अल्लाह मुझे तेरी रहमत की बहुत उम्मीद है। करते कुछ नहीं और बस अल्लाह की रहमत आते रहे, तो ऐसे नहीं होता है। ये अल्लाह ने कंडीशंस रखी है, ये अल्लाह ने इस तरीके से जो है वो सब चीज़ें यहाँ बता दी है हमको, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर उसके बाद याद रखिए, फिर अल्लाह के रास्ते में आप निकलेंगे, खपाएंगे अपने आप को, तो कुछ थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तो आपको सब्र करना पड़ेगा, जो मुश्किलात आएगी उस पर आपको जो है वो रुकना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये हमने देखा कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने किस तरीके से यहाँ पर बताया कि जो वाकई अल्लाह के रास्ते में हिजरत करेगा, ईमान के साथ जिंदगी गुजारेगा और उसके रास्ते में जद्दोजहद करेगा। तो एक सीधी सी बात याद रखें कि जो इंसान अपने जाती जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में सब्र करता है ना, वो दीन के रास्ते में भी अच्छा सब्र कर लेता है। और जिसको अपने पर्सनल लाइफ में ही सब्र नहीं है, एकदम वावेला मचाने वाला, बिल्कुल उसके अंदर ठहराव नहीं है, तो वो दीन के रास्ते में भी कोई एकदम स्टेबल नहीं रह सकता है। ठीक है, चलिए अगली आयतों पर चलते हैं, ये भी बड़ी जबरदस्त बात है, इंशाल्लाह देखते हैं। फिर बात आ गई यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, वो सब आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। अब शराब से मुराद यहाँ पर कोई भी नशा वाली चीज आप ले लो कि अल्लाह के रसूल नशा वाली चीज के बारे में और जो है वो जुए के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाता है। अब आपको लग रहा है सहाबा को क्या उसे सुट्टे पड़ी सब पूछने की, जी, तो व्हाट्स द रीजन, कोई यहाँ पर नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के रसूल को जो है वो डिवैल्यू करने के लिए नहीं पूछते थे, अपना करेक्शन के लिए। याद रखिए कि दीन पर अमल करने के लिए इंसान सबसे पहले अपना करेक्शन करता है। मुझे भी बड़ी खुशी होती है जब कुछ स्टूडेंट्स का कि जब वो कुरान सुनते हैं, फिर फ़ोन करते हैं, अपनी नमाजें दुरुस्त करते हैं, मतलब अल्लाह का मैं दिल से बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उन्हें अपनी फिक्र लग रही है, यानी कुरान उन पर असर कर रहा है ना, ये ज़ाहिरी एक सूरत है। तो उन्होंने पूछा, अब याद रखिए कि आप बोलोगे ओह सहाबा पूछे क्या शराब पीते थे, जी हाँ, जब तक शराब की हुर्मत की आयतें नहीं होती थी। आज के टाइम पे जैसे आप समझिए कि खाने पर लोग पानी या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखते हैं ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, सहाबा उस पानी की तरह शराब को पिया करते थे। क्यों? क्योंकि हराम नहीं थी, हुर्मत की कोई आयत नहीं उतरी थी। तो उस लिहाज से ये फर्स्ट आयत उतरी कि ठीक है अब तुम्हें जो है फिक्र लग गई है, तो ठीक है हम ये करते हैं, चलिए ठीक है। अच्छा, तो क्या बात थी, अल्लाह ने कहा आप इनको जवाब दे दो, भाई देखो उन दोनों में गुनाह तो है, गुनाह बहुत बड़ा है, हाँ लेकिन इंसानों के लिए थोड़ा फायदा भी है। अब आप सोच रहे हैं इसमें फायदे की क्या बात है, तो चले आपको बता देते हैं कि क्या होता है। पता है कि ये लोग क्या करते थे, सहाबा जो थे शराब पीते थे,
اور بہت سارے اپنی तिजोरियों में से सदका ला ला के नशे की हालत में सदका करते थे। और जब उनको होश आता था तो खूब डिंगे मारते थे, बड़ाइयाँ मारते थे, देखा मैंने इतना सदका किया, मैंने उतना सदका किया, ये किया वो किया। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ ये इंसिडेंट हो गया था कि एक सहाबी उनको टेक केयर बनाए थे अपनी ऊँट का, और उन्होंने क्या किया, शराब के नशे में उन्होंने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो है वो ऊँट, एक टेक कैरियर था उसको ऊँट दिए थे, वे संभाल इसको, उसने क्या किया, नशे की हालत में ऊँट को ज़िबा कर करा के सारा गोश्त बाँट दिया। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस ऊँट को रखे थे जैसे कि वलीमा वगैरह करना था या कुछ ऐसा, तो बोले ये क्या हो गया, बोले वो बस मैंने जो बहुत सारा सदका कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। होश आता था जब उन्हें तो ये बातें समझ आती थी। तो याद रखिए, एक चीज याद रखिए कि गलत तरीके से की हुई नेकियां ऐसे काबिल कबूल नहीं है। इसलिए अल्लाह ने कहा ना कि हाँ ठीक है, लोगों का थोड़ा भला हो जाता था, फायदा होता था, लेकिन गुनाह बहुत बड़ा है इसके अंदर कि इंसान अपने होश में नहीं रहता है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं और उन दोनों का जो गुनाह है वो ज्यादा बड़ी बात है उसके नफे से। बस ये इतनी सी बात काफी नहीं इंसान के लिए, अल्लाह ने कह दिया। देखो ठीक है मुनाफा है लेकिन गुनाह बहुत ज्यादा है, तो ये भी इंसान को रुक जाना चाहिए। और इसमें शराब क्या, हर नशे वाली चीज इंक्लूड है कि जिससे इंसान अपना आपा खो बैठे। और जहाँ पर अल्लाह और रसूल की बात आ जाती है तो यहाँ पर देखिए शराब से रुकने की बात नहीं की गई। इंशाल्लाह आगे जाकर हम सूरह माइदा, सूरह निसा में इंशाल्लाह देखेंगे, वहां पे फिर आ गया था कि अब कम्प्लीटली हराम है, अब आपको जो पीना नहीं है, ठीक है। लेकिन जब अल्लाह ने ये कह दिया था तो बहुत सारे सहाबा इससे भी रुक गए थे। जहाँ अल्लाह रसूल की बात आ जाती, सहाबा अपने आप को कभी भी आगे नहीं रखते थे, ठीक है। अब उसके बाद जो है जैसे कि अभी पीछे हमने खर्च की बात देखी, फिर उसके बाद ये भी जो है वो इन्होंने फिर शराब के बारे में पूछा। और याद रखिए इस तरीके से जो है वो शैतान है ना, चाल चलता है लोगों के अंदर, कुछ नहीं, अरे हराम थोड़ी है, ये कर लो ना, चलता है, थोड़ा गुनाही तो मिलेगा, है ना। कुछ लोग जो है इससे इन्वॉल्व होते हैं या अल्लाह की नाफरमानी, उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं, तो इस तरीके से। और दूसरी एक बात याद रखें कि बाज़ दफ़ा लोग क्या करते हैं पता है, कि अपने इसी तरीके से ना थोड़े से फायदे के लिए ना हराम उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं, है ना। आज बहुत सारे लोग जैसे दीन के नाम पर कितना गलत गलत काम करते हैं, है ना, ऐसे ही होता है ना। अब यार उसी तरीके से मुझसे भी उसी से कोई पूछ रहा था कि हाँ, जैसे आप समझे कि किसी ने एफडी करवाई हुई थी और फिर उसके बाद उसको जो इंटरेस्ट वगैरह मिला, तो मैंने कहा नहीं आप ही नहीं ले सकते। फिर उन्होंने असल जो माल था वो लिया, इंटरेस्ट वगैरह नहीं लिया। और दूसरी बात ये कि अच्छा मैं फिर रख दूँ क्या इसको, फिर फिक्स कर दूँ क्या, क्यों, तो अब जो पैसे मिलेंगे तो मैं उसको दूसरे किसी जरूरतमंद, मैंने कहा देखें पहले आपने अनजाने में किया, अब आपको पता चल गया, अब ये काबिल कबूल नहीं है आपका ये। तो माशाल्लाह बहुत समझदार थी, उन्होंने फिर उसको एफडी नहीं करवाया। तो याद रखिए कि अनजाने में मुझसे आपसे कोई काम हो तो अल्लाह एक बार इग्नोर भी कर दे उस बात को, लेट गो भी कर दे, लेकिन जानबूझकर मुझे और आपको बिल्कुल भी इस तरीके से कोई काम नहीं करना है, ठीक है। अब कुछ लोग नाच गा कर पैसे कमाते हैं, बेहयाई के काम करके पैसे कमाते हैं, क्यों, ताकि हम ना दूसरे लोगों की मदद करें। तो तरीका गलत है आपका, कमाई का तरीका गलत है, और आप सोचे उसको नेकियों में लगाएं, तो ये काबिल कबूल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और वो सोचते थे कि फॉर ए गुड कॉस्ट हम ये काम कर रहे हैं, तो ऐसा काबिल कबूल नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि इनसे, अच्छा फिर बात आ गई है सलूना का, और वो सब पूछते हैं कि भाई क्या हम खर्च करें। देखिए बार बार खर्च की बात आ रही है, और आज के लोगों का देखिए दीन के लिए लोगों को पैसे मांगने पड़ते हैं, क्यों, क्योंकि लोग निकाल नहीं रहे पैसे, तो दीनदारों को मांग मांग के काम करने पड़ते हैं। साहबा के जैसे हो कि भाई जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा है अल्लाह हमने तेरे लिए रखा है, ये आदत बनाए अपनी, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा है उसको अल्लाह की रजा के लिए खर्च करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह बहुत देगा, बहुत देगा, ठीक है। अच्छा अल्लाह की राह में खर्च करना ये भी है कि भाई अल्लाह ने आपको नवाजा है, आप जाएं हज करके आए, उम्रा करके आए, ये भी तो अल्लाह की राह में लगाना हुआ ना। अब कुछ लोग इस घर से नहीं, हम इतने पैसे हैं, घर खरीदेंगे, बच्चे की शादी है, बच्चे की पढ़ाई है, तो फिर लगे रहे ना, अल्लाह जिस चीज का हुक्म दे रहा है आप वो तो कर नहीं रहे हो। यार कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप लगा दे, जा कर आए, आप अल्लाह का घर देख कर आए, अपने बच्चों को दिखाएं, जमा करने की फिक्र में मत रहे। आज मैं और आप आए, चले जाएंगे दुनिया से, माल पीछे रह जाएगा, ना आपने अल्लाह का घर देखा, ना अपने बच्चों को दिखाया। अल्लाह पूछेगा आपको उस माल के बारे में, आपके बच्चे आपके पीछे आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं उस माल का, आपको थोड़ी पता है। तो अपने जीते जी अपने हाथ से लगा जाए तमाम चीजों को इस तरीके से अल्लाह के रास्ते में।
फिर अल्लाह ताला कहते हैं आप इनसे फरमा दीजिए कि जो जरूरत से ज्यादा है वो सब तुम अल्लाह के रास्ते, लो बात आ गई यहाँ पर। अल्लाह ने कहा तुम्हारी जरूरत से ज्यादा। अब आज किसी से आप पूछो तो बोले कहा मेरी जरूरत मेरी पूरी नहीं होती। असल में वो जरूरत नहीं होती, वो ख्वाहिशात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इंसान अपनी जरूरत के पीछे सिर्फ रहे ना, बहुत अच्छे से पूरी कर सकता है। जो ख्वाहिशात होती है ना इंसान की, उसकी वजह से वो पैसे नहीं बचा पाता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि इसी तरीके से जो है अल्लाह तुम्हारे लिए आयतें बयान करता है ताकि तुम क्या करो, वजीफे करो, क्या करो, एक्सीलेंट, लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र करो। लो भाई आ गई बात कि तुम गौर व फिक्र करो, ठीक है। और आज लोग आयतों पर गौर व फिक्र नहीं करते, लेकिन बाकी सारी दुनिया की जो है वो बातें कर लेते, लेकिन गौर व फिक्र ही नहीं करते हैं, ठीक है। अगली आयत पर हम चलते हैं, आयत नंबर 200 कितनी है, 20। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं ओके कि हाँ फिर दुनिया वाला आखिरा, अच्छा बात कंटिन्यू है, ठीक है, ताकि तुम गौर व फिक्र करो इस दुनिया में भी और आखिरत के बारे में भी, ठीक है। और जैसे हर बार मैं आपसे एक बात कहती हूँ, कोई भी काम आप करें तो चीजें उसमें जरूर देखें, इससे दीन का क्या फायदा होगा और मेरी आखिरत पे इसका क्या इफेक्ट होएगा। वही बात अल्लाह ने यहाँ कह दी। और वो सब पूछते हैं आपसे यतीमों के बारे में, तो ठीक है आप इनसे कह दीजिए, उनकी इस्लाह करना तो बहुत नेकी का काम है। और अगर तुम जो है वो अपने साथ उनको मिला कर रखो, अपने साथ में रखो, तो भाई वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। और अल्लाह वो जानता है कि कौन तुम में से फसाद करने वाला है और कौन इस्लाह करने वाला है। और अल्लाह अगर चाहता तो जरूर तुमको ना मशक्कत में डाल देता। बेशक अल्लाह कैसा है, बहुत गलबे वाला है और हिकमत वाला है। सुभान अल्लाह। सोचिए इंशाल्लाह यहाँ पर जो यतीमों की बात चल रही है, इन डिटेल सूरह निसा में हम जाकर पढ़ेंगे, यहाँ पर इतना काफी है। चलिए अगली आयतें बहुत बेहतरीन है, अगली आयतों को अगली पूरी बहुत आगे तक हम चलेंगे। तो यहाँ पर आप इस आयतों को टॉपिक दे सकते हो कि यहाँ पर जो है वो माशरे के जो भी मसले मसाइल होते हैं, हमारे समाज के जो भी मसले मसाइल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल निकाह हो गया, तलाक हो गया, इद्दत का मसला हो गया, ये तमाम बातें इंशाल्लाह हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। और याद रखिए कि इसमें से सबसे पहली आयत जो है 212 है ना, तो ये जो है ये इसमें बहुत बेसिक जो मैसेज मुझे और आपको दिया जा रहा है कि अगर आज एक इंसान अपने नफ्स पर काबू रख के इस आयत पर अमल कर लेगा ना, तो वो उसका अभी का सब्र किया हुआ अपने नफ्स पर काबू और सब्र उसकी नस्लों तक उसको फायदा देगा। और वो क्या बात है, अब देखिए एक समाज किससे बनता है, कपल से, है ना, जोड़े से। जोड़े का ताल्लुक किससे है, निकाह से। तो सबसे पहला मसला यहाँ निकाह का बताया जा रहा है। आप में से जिनको नहीं पता था या जो अपने बेटा और बेटी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, उनको चाहिए कि ये जरूर बड़े ध्यान से सुने, और जिनका निकाह हो गया तो छोड़े जाने दें, कुछ गलत हुआ है तो उस पर गौर व फिक्र करें, ठीक है। चले हम चलते हैं अपने आयतों की तरफ। अल्लाह सुब्हानहू तआला 212 में फरमाते हैं, आयत नंबर भी बहुत ईजी है, याद रखना कोई मुश्किल नहीं है। और नहीं तुम निकाह करो, किसको बोला जा रहा है, मर्दों को, ठीक है। मर्दों को कहा जा रहा है कि मुशरिक औरतों से कभी भी निकाह मत करो यहाँ तक कि वो ईमान ले आए। अल्लाहु अकबर। याद रखिए कि जो भी अल्लाह के रसूल ने शराइत बताए हैं निकाह करने के, तो आप ईमान को मजबूत बुनियाद बनाइए। आप जहाँ रिश्ता कर रहे हैं, चाहे अपने बेटे का या बेटी का, ईमान को क्या करना है, बुनियाद बनाना है कि भाई इस बंदे के अंदर, इस बंदी के अंदर ईमान कितना है। मुशरिक से अल्लाह ने निकाह करने के लिए सख्ती से मना किया है, ठीक है। चले उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं और जो है वो हाँ, और अलबत्ता तुम्हारी जो अगर सर्वेंट है वो ईमान वाली है, तो उस मुशरिक खातून से बेहतर है, चाहे वो तुम्हें कितनी ही पसंद क्यों ना हो, चाहे वो औरत, मुशरिक औरत तुम्हें कितनी ही पसंद क्यों ना हो। यहाँ मैं कहती हूँ कि माओ को यहाँ मैसेज दिया जा रहा है, तुम्हारी बेटे को बड़े हूर परी कोई भी पसंद हो, अगर वो मुशरिक है तो अपने बेटे का निकाह मत करवाओ उससे। अल्लाह सख्ती से मना कर रहा है इस चीज के लिए। और बहुत जो है वो क्यों, क्योंकि ईमान को बुनियाद बनाओ। अगर एक क्यों अल्लाह ताला आगे बता रहे रीजन। चले उसके बाद आप जरा सा ग्रामेटिकली आप अगर कोई जानता हो तो, वला तुनकिहुल मुशरिकीन, और ना तुम निकाह में दो, निकाह मत करवाओ, किसका, औरतों का, मुशरिक मर्दों से। क्या पता चला, औरत खुद से अपना निकाह नहीं कर सकती, ठीक है। मुशरिक मर्दों
کہ نکاح میں اپنے گھر کی عورتوں کو مت دو یہاں تک کہ وہ بندہ ایمان لے کر آئے، یہاں تک کہ وہ کیا کرے، ایمان لے آئے۔ اور یقیناً اگر کوئی غلام ہے تمہارا اور وہ ایمان والا ہے تو زیادہ بہتر ہے اس پسندیدہ مشرک مرد سے۔ کیا سمجھے؟ سوچے، ایک ایمان والا ہے، غریب ہے، ٹھیک ہے، اسے تم اپنے بیٹی کا نکاح کر دو، لیکن کسی مشرک آدمی سے مت نکاح کرواؤ، ٹھیک ہے؟ مشرک مطلب جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بھی پکارتے ہیں، اوکے؟ اب اس کے بعد چلیے اب یہاں پہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اب اس کی جو ہے وجہ بتائی ہے، علت کہتے ہیں نا، کیا ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہی لوگ ہیں وہ بلاتے ہیں آگ کی طرف، اللہ اکبر، سیدھی بات ہے نا، ایک آگ کا پجاری آپ کو آگ کی طرف ہی لے جائے گا نا۔ آپ مشرک سے شادی کریں گے، آپ کافر عورت سے شادی کریں گے تو وہ آپ کو آگ کی طرف ہی لے جائے گی۔ کون سی آگ؟ جہنم کی آگ کی طرف۔ یہ کیسے ہو گیا؟ وہ ایسے ہو گیا کہ یاد رکھیں کہ ٹھیک ہے چلو بھائی وہ مشرک ہے، نان مسلم ہے، آپ لے کر آئے، سب سے پہلے صبح اٹھتے ہی لفڑا چالو ہوئے گا، صبح اٹھتے ہی جھگڑا چالو، کیوں؟ کچھ طہارت کے مسائل ہے، نہیں مجھے ابھی سونا ہے، تم کو نماز پہ جانے کی ضرورت نہیں، تم کو فریش اپ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ارے بھائی فریش نہیں ہوگا تو نماز کے لیے کیسے جائے گا؟ پھر ہر وقت تو ظہر میں جا رہا ہے تو جھگڑے ہو رہے ہیں، وہ اثر میں جا رہا ہے تو جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ کیا ہر وقت تم نماز کے لیے جاتے رہتے ہو، ہے نا؟ مسئلے وہیں سے، یعنی شروعات ہی جھگڑے سے ان کی ہوئے گی، اور اس طریقے سے جو ہے وہ بہت بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ کبھی بھی ایسے اپنے بچوں کو جان بوجھ کے کنویں میں نہ ڈھکیلیں۔ اگر آپ کا بچہ ایمان والا ہے تو اس کے لیے ایمان والی بچی ہی لے کر آئیں، اور اگر پتہ ہے آپ کو میرا بچہ بہت بگڑا ہوا ہے، بہت بگاڑ ہے اس کے اندر، تو کسی کی بچی کو لا کے اس کی زندگی نہ خراب کرے۔ کیوں؟ ارے آئے گی اچھی لڑکی تو سدھار دے گی، ایسا نہ ہو کہ اس کی زندگی جہنم بنا دے تمہارا بچہ، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان سب تمام چیزوں سے اللہ منع کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو، اور اللہ وہ بلاتا ہے تم کو جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ صحیح جگہ پر اپنے بچوں کا رشتہ کرو گے، صحیح جگہ پر آپ کی شادی ہوگی۔ یاد رکھیے ایک ہسبینڈ وائف جو ہوتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں۔ ایک اگر جنت کے راستے پہ چلے گا تو وہ دوسرے کو بھی جنت کے راستے پر چلائے گا۔ ایک اچھے دوست ہوتے ہیں وہ، تو ایک اچھا دوست اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھا ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کا اچھا اثر اس کے دوست پر پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد جو ہے یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بیان کرتا ہے آیتیں تمام انسانوں کے لیے تاکہ وہ کیا کریں، نصیحت حاصل کریں۔ سوچیے تو کس طریقے سے آپ کو کیا نصیحت لینا ہے اس سے؟ لکھے اپنے قرآن میں کہ اپنے بچوں کا اچھے گھروں میں رشتہ کروائیں، اچھے بچوں سے رشتہ کروائے، تو اس آیت پہ انشاءاللہ آسانی سے عمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ چلے اب اس کے بعد جو ہے وہ ٹھیک ہے شادی ہو گئی، پھر اس کے بعد ہسبینڈ وائف کا ایک اور مسئلہ، وہ ہے حیض کا مسئلہ۔ یہ مسئلہ کیوں پیش آیا؟ اب کیا ہوا؟ ہجرتیں ہوئی، بہت ساری جنگیں ہوئی، تو بہت ساری عورتیں جنگ میں آئی، پھر صحابہ کو ان سے نکاح کرا دیا گیا، وہ یہودی بھی تھی، نصارہ بھی تھی۔ ایک مسئلہ یہ پیش آیا تھا، یہودی جو تھے نا، وہ یعنی کہ جب پیریڈس آتا تھا نا عورتوں کو، تو بہت ہی زیادہ علیحدگی اختیار کرتے تھے، ایک دم اچھوت بنا دیتے تھے۔ اب نصرانی لوگ کیا کرتے تھے؟ نعوذ باللہ پیریڈ سے بھی سب عمل کرتے تھے، ہم بستری کرتے تھے، اللہ نے جو منع کیا وہ سب کرتے تھے۔ اب وہ لوگ اللہ کے رسول کے صحابہ کے جوزیت میں آئی تو صحابہ تو پریشان، یہ کیا بات ہو گئی؟ یہودی عورت تو چھونے نہیں دے رہی، اور ایک تو اتنے گندے کام کروا دی۔ تو یہ سب معاملہ پیش آیا تھا۔ تو جب معاملہ پیش آیا تو فوراً صحابہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ یسألونک، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سب آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، پیریڈس کے بارے میں۔ دیکھیں جو پہلی دفعہ قرآن سنتے، میں نے کہا نا کہ انہیں بڑا عجیب لگتا ہے کہ ہم نے تو قرآن کو بھائی بڑے وظیفے کی کتاب سمجھی تھی، اسے پیریڈس کے بارے میں دیا۔ جی ہاں، اس میں کوئی جھجک بے حیائی کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن ان تمام چیزوں سے پاک ہے، قرآن میں کوئی بے حیائی کی باتیں نہیں ہے، کوئی غلط اور گندی باتیں نہیں ہیں۔ تو جو لوگ پیریڈس کو لے کر، سیکس کو لے کر بات نہیں کرتے ہیں تو وہ بہت غلط کام میں لگ جاتے ہیں۔ یہ بلا جھجک جس کو جو نالج اللہ نے دیا ہے، سوچیے اگر یہ کوئی بری بات ہوتی تو اللہ کے رسول کرتے؟ ارے صحابیات آ کے مسئلے پوچھتی تھی اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول میرا پیریڈس اتنا دن چل رہا ہے، ابھی خون آ رہا ہے، اچھا میں کیسے پتا کروں کہ میں پاک ہو گئی نہیں ہو گئی ہوں؟ تو اللہ کے رسول کو تھوڑی حیا تو آتی تھی،
ये आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बीच में रखते थे, उनसे बोलते थे। अच्छा औरतें तो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के रसूल क्या बेहयाई करते थे, अस्तग़फिरुल्लाह। आज अगर आप किसी को समझाने जाएंगे ना, बहुत बेशरम औरत है, इसको तो शर्म ही नहीं आती है, ऐसी बातें करते। सोचिए, मतलब तुमको समझाओ नहीं और तुम गलत गलत काम करते रहो, वो चलेगा तुमको? सोचिए। और यकीन करें कि जब तहारत के मसाइल हम लोगों ने लिए, ऐसे ऐसे हमको फीडबैक मिले ना, 15 साल हो गए शादी को, 20 साल हो गए शादी को, लेकिन हमको बहुत सारी चीजें नहीं पता। अब सोचिए, इल्म हासिल करना बेहतर चीज है, इल्म हासिल कर लेना चाहिए, ठीक है। और ये सब तहारत के मसाइल में से चीजें आती हैं। अभी भी मैं तो बिला झिझक कहती हूँ स्टूडेंट से, अपने जो भी साथी हैं, आपको जो कोई भी कुछ भी मसला पेश आए, आप पूछिए। अल्लाह ने मुझे जो भी सिखाया है, जो भी अल्लाह ने मुझे नॉलेज है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करती हूँ। नहीं है तो हम और स्टडी करके और वो भी अल्लाह के हुक्म से बता देते। लेकिन अगर आपकी कोशिश से एक भी अगर गलत काम से बच गए तो अच्छी बात है, नहीं है ना? ठीक है, तो चलिए अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया है देखते हैं। और इन आयतों को सुनने के साथ साथ ना आपको जरूर एक बात तो जरूर फील होगी कि अल्लाह मेरा है, औरतों का नहीं, अल्लाह मेरा है। क्यों पता है? अल्लाह सुब्हाना ताला ने इन आयतों में औरतों के बहुत सारे हुकूक रखे, बहुत सारे हक की बात की है। कोई दुनिया की कोई किताब आपको अल्लाह के हुकूक पर इतनी बातें नहीं आपको सिखाएगा समझाएगा जितना अल्लाह ताला ने यहाँ पर की है, ठीक है। जैसे तलाक के मसाइल हो गए और ऐसे बहुत सारी खूबसूरत बातें इंशाल्लाह हम यहाँ देखेंगे। चलिए, और फिर उसके बाद जो है अल्लाह ताला बोलते हैं कि देखो ये जो हैज के बारे में तुम पूछ रहे हो, तो आप इनको जवाब दे दो, हुआ अज़न। क्या है वो गंदी चीज है और वो तकलीफ की बात है। जाहिर सी बात है, औरत वो गंदा तो है लेकिन बहुत तकलीफ भी होती है औरत को, अल्लाह ताला कह रहे हैं। तो क्या करें? फिर शौहरों को क्या करने को कहा गया है कि दूर रहो औरतों से इन दिनों में, हैज के दिनों में दूर रहो। अच्छा, दूर रहने से मुराद ये नहीं कि मायके भेज दो, बेडरूम से बाहर निकाल दो और उनको जो है हॉल में सुलाओ, तुम बेडरूम में सो, जी नहीं, ये नहीं है। यहाँ दूर होने से मुराद आप लिखिए अपने कुरान में कि सिर्फ आपको इंटरकोर्स नहीं करना है, दैट्स इट। आपको उनके साथ सेक्स नहीं करना है, बाकी आप उनके साथ उठो बैठो खाओ पियो। कितनी हमको दलीलें मिलती है आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। देखिए, हस्बैंड वाइफ के जितने भी मसले मसाइल थे आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत अच्छे से बयान करती थी, उनके बहुत सारे हदीस हमको मिलती हैं। तो सिर्फ इंटरकोर्स नहीं करना है, बाकी जो है वो आप खाओ पियो उनके साथ, लेटो बैठो। एक हस्बैंड वाइफ अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो वो एक दूसरे को प्यार मोहब्बत भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो, और नहीं तुम उनके करीब जाना यहाँ तक कि वो लोग पाक हो जाए, और जब वो पाक हो जाए तो उनके पास आओ जहाँ से अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है। इस बात को लेकर बहुत सारे लोग बहुत गलत फहमी में आते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, बहुत गलत गलत हरकतें भी करते हैं। अब पाक होने की बात यह है कि आपकी जो भी मुद्दत है, आप ठीक है 8 दिन में पाक हो जाती हैं, आपको एक रेडिश सब खत्म हो गया है, व्हाइट आने लगा है, तो ठीक है आप जो है वो यानी कि नमाज पढ़ना शुरू कर दें। लेकिन याद रखिए कि जब तक कंप्लीटली आपको कंफर्म ना हो जाए कि अब बिल्कुल मैं नीट एंड क्लीन हो गई, उससे पहले हस्बैंड के पास मत जाइए। कभी कभी किसी को ऐसा भी होता है ना, हाँ ठीक है उसको व्हाइट दिखने लगा है, लेकिन फिर वो जो है वो समझो जरूरत पूरी करते हैं शौहर उसके साथ में, तो फिर से ब्लीडिंग हो जाती है, तो ऐसा होता है। तो आपका जो मुद्दत है कम से कम 1 दिन और जाने दें, लेकिन मत जो है वो इतना गफलत में रहें, ठीक है। आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो, हाँ ये बात थी कि अल्लाह ने जैसे तुम्हें हुक्म दिया है। इस आयत को लोग कुछ मर्द ऐसा गलत कोट करते हैं कि जहाँ से अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया नाउज़ुबिल्लाह वहाँ से भी अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम्हारी बीवियाँ हैं और जैसा चाहो, अरे जैसा चाहो नहीं, ऐसा नहीं कि जैसा चाहो, अल्लाह ने जहाँ से हुक्म दिया है उसके हिसाब से तुम्हें काम करना है। तो देखिए आयत को इस तरीके से ना गलत पॉइंट ऑफ व्यू में मत लेकर जाइए। आगे अल्लाह ताला बताते हैं हाँ कि हाँ नहीं तो उनके करीब जाओ, बेशक अल्लाह पाक रहने वालों को और जो है वो पसंद करता है, ठीक है, तौबा करने वाले पाक रहने वालों को और तौबा करने वालों को पसंद करता है। तो यहाँ पर ये जिस्मानी जो है वो उसकी भी बताई जा रही है कि जिस्मानी तौर पर भी तुम अपने आप को पाक साफ करो और तौबा करके गुनाहों से भी खुद को पाक साफ करो, ठीक है। अब उसके बाद औरतों के हिसाब से याद रखिए कि अगर औरतों के लिए कोई मुझसे पूछे ना कि कुरान में सबसे खूबसूरत जुमला कौन सा है, तो मैं कहूंगी ये है आयत नंबर 233 है, क्या है वो 23, 223। औरतों के लिए सबसे खूबसूरत जुमला अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो कहा है क्या है वो, चलिए आज
हम भी इंशाल्लाह सुनते हैं और खुश होते हैं। अब मुझे नहीं पता भाई आप लोग खुश होंगे कि नहीं होंगे, चलिए देखते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं देखो ये तुम्हारी बीवियां, ये औरतें तुम्हारे खेती है, फिर आओ तुम्हारी खेती में, देखो अन्नासी तुम, जब तुम चाहो, और आगे भेजो तुम्हारे नफ्स के लिए कुछ भी, और डरते रहो अल्लाह से, और जान लो कि बेशक अल्लाह उससे तुम मुलाकात करने वाले हो, और खुशखबरी दे दो ईमान वालों को। अल्लाह अकबर। हाँ, आपको लग रहा है इसमें क्या खूबसूरत बात है भाई, आप कह रही थी बड़ा खूबसूरत जुमला है औरतों के लिए। जी हाँ, ये मेरे नजदीक अल्लाह की तरफ से बहुत खूबसूरत जुमला है। देखिए यहाँ पर बात आई है, और जो लोग बहुत के वीमेन राइट्स के ऊपर बात करते हैं, औरतों के हुकूक के ऊपर बात करते हैं ना, उस इस आयत को कोट करते हैं। क्या, देखो देखो औरतों को खेती कहा गया है, ये कहाँ का इंसाफ है, ऐसा है वैसा, भड़काने के लिए। तो याद रखिए ये इसलिए खूबसूरत है, मीडिया ने और वेस्ट कल्चर ने औरतों को क्या क्या नाम दिया, चांद दिया, तितली दिया, और क्या क्या नाम दिया उसको। तो मुझे एक बात बताएं, पहले तो हम इस आयत से बात करेंगे कि अगर समझिए कि शोहर को औरतों को कहा गया है कि वो तुम्हारी खेती है। खेती किसकी होती है? किसान की। किसान का क्या तस्वुर होता है अपनी खेती के साथ, है ना? उसको टेक केयर करता है ना? जहाँ कहीं जाएगा उसका ध्यान खेती की तरफ ही रहता है, और अपने खेत में बिला वजह किसी को फिरने नहीं देता है कि नहीं? और भी जो बेनिफिट्स आप गिनना चाहो, अपने दिमाग लाना चाहो, लाओ। ठीक है, ये अल्लाह ने नाम दिया कि एक अच्छे शौहर अपने दिल में सिर्फ अपनी वाइफ की मोहब्बत बिठा कर रखते हैं। ठीक है, एक किसान जैसे अपने खेती की टेक केयर करता है, एक हस्बैंड अपने वाइफ की टेक केयर करता है, और वो जहाँ पे भी जाएगा वो अपनी वाइफ को ही अपने दिमाग में रखता है, किसी और औरत को अपने जहन में आने नहीं देता है। और उससे छुट्टे ऐसे नहीं कि कोई भी उसकी बीवियों पे नजरें मार के चला जाए, उसके खेत पर नजर मार के चला जाए, नहीं। अब आइए चलिए कि कुछ लोग बोलते हैं चांद ही कह देते अल्लाह ताला हमें, तितली ही कह देते। तो देखिए मीडिया ने आपको इनाम दिया ना। अब मुझे बताएं तितली क्या है, उसका रोल? हर फूल पर बैठती है, रस चूसते रहती है, हाँ, एक जगह टिकती है क्या? अल्लाह को नहीं पसंद था कि मैंने जिस औरत को पैदा किया है वो कोई भी ऐरा गहरा नत्थु चेहरा आके उसको ताड़े और इस तरीके से। चांद क्यों नहीं कहा? तो मुझे बताएं कि चांद को देखने में कोई मेहनत लगती है? जैसे किसान अपनी खेती में मेहनत करता है, लगती है कोई मेहनत? नहीं लगती। आपको क्या है, गर्दन उठा के चांद को देख लो। तो अल्लाह नहीं चाहता है कि इस तरीके से तुम्हें कोई भी देख दाग के चला जाए। तो किसान के साथ एक शौहर का समझिए कि एफर्ट लगता है, वो अपनी वाइफ के लिए एफर्ट डालता है, मेहनत करता है, और इस तरीके से। तो ये बहुत खूबसूरत जुमला अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो है वो कहा है हस्बैंड वाइफ के ताल्लुक से। आगे अल्लाह ताला, चलिए फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं इंशाल्लाह। कहते हैं वो सब तलाक के मसाइल पर आ रही है। तो याद रखिए कि एक चीज हमेशा याद रखिए, जो ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको अमल करना है तो कर लें, अदरवाइज रहने दें। कि जब हम कुछ सीखते हैं ना, तो पहले से हमारे जहन में जो भरा हुआ होता है ना, उसको एक तरफ रखने का। अभी इसमें मिलावट नहीं करना है आपको। आपको तलाक के बारे में जो कुछ भी पता है उसको एक तरफ रखें, आप एक साइड, बिल्कुल भी कुछ ना सोचें। अब आयतों के जरिए आप क्या सुन रहे हो ना, उसको सुनिए, और फिर बाद इंशाल्लाह मैं सोची ना कि मैं अगर कुछ नहीं भी बोलूँ, सिर्फ आयतों का तर्जुमा कर लो ना, तो ये सारा खुलासा आपको हो जाएगा। इतना बड़ा कोई इशू नहीं है जितना लोगों ने इसको बना कर रखा है, ये इतना कोई मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने इसको बना कर रखा है। तो चलिए उसकी शुरुआत जो होती है वो आयत नंबर 224 से हो रही है। हालांकि इसमें कसम की बात है, तो तलाक भी एक तरीके की जो है वो कसम होती है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं आयत नंबर 224 में कि और नहीं तुम बनाओ अल्लाह को तुम्हारी कसमों का जरिया मत बनाओ कि रुक जाओगे तुम नेकी से, और जो है वो तकवे के कामों से और इस्लाह के कामों से इंसानों के दरमियान, और अल्लाह खूब सुनता और जानता है। अब क्या होता है पता है कि अब आपको लगेगा एकदम से टॉपिक जो है वो चेंज हो रहा है, तो वो इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर जो है वो औरतों के हुकूक की बात की है, रिश्ते की बात की है। कभी क्या होता है पता है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को कोई रिश्ता बताया एंड वो मिस मैच हो गया, मतलब लड़की अच्छी नहीं निकली या लड़का अच्छा नहीं निकला, देन आप बोलते हो अल्लाह की कसम अब तो मैं किसी का रिश्ता ही नहीं करवाऊंगी, इनके खानदान में तो बिल्कुल ही नहीं करवाऊंगी। होता है ऐसा, कोई कोई ऐसा बोलता है। तो चलो बोले इसको कि कोई बात नहीं, एक मिस मैच हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के साथ भलाई करना रोक दोगे। तो वो बात असल में यहाँ बताई गई है कि
इस तरीके से कसम नहीं खाना चाहिए। अच्छा, आप में से जो लोग इंटरेस्टेड होंगे ना, आप सूरह बकरा की प्ले लिस्ट में जाइए। इन आयतों को हमने एक एक आयतों को कम से कम आधा आधा एक एक घंटा दिया है और इतना डीपली वहाँ पे बताया ना। जो ज़्यादा इंटरेस्टेड है ना तलाक के बारे में बहुत डिटेल में जानने की, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप जाके जो है वहाँ पर आयतें इंशाल्लाह सुन लें, बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हो जाएगा आपको। तो वहाँ मैंने कसम के बारे में भी बताया, कौन सी कसम हम खा सकते हैं, कौन सी कसम नहीं खा सकते हैं। अब रही बात कसमें खाने की, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं नहीं, अल्लाह पकड़ेगा तुम्हें तुम्हारी फजूल जो है वो कसमों में, और लेकिन पकड़ेगा तुम्हें उस पर जो तुमने अपने दिलों में इरादे के साथ कसम खाई है, और अल्लाह गफूरुर रहीम है। ये क्या बात है? ये असल में जो है वो यानी कि कुछ लोग ना अल्लाह की कसम सच में मैंने ये नहीं करी, वल्लाही बिल्लाही कसम 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 से सच्ची में ये काम नहीं करी, तो बोले ये ऐसे बेकार कसमों में अल्लाह तुम्हें नहीं पकड़ेगा, लेकिन दिल के इरादे से अगर तुमने कोई कसम खाकर ये काम नहीं करूंगी ऐसा कुछ कहा है, तो अल्लाह उस काम को नहीं करने पर तुमको पकड़ करेगा। ठीक है, अगली आयत पर चलिए। और उन लोगों के लिए जो करीब न जाने की कसम खा लेते हैं अपनी बीवियों से, तो अल्लाह ताला कहते हैं उनकी बीवियों के लिए इंतजार की मोहलत 4 महीने की है। फिर अगर वो, अच्छा ये 4 महीने की मोहलत कहे की है कि भाई 4 महीने में वापस आ जा, नहीं तो फिर जो है वो अल्लाह ताला बोल रहे हैं फिर अगर तुम जो है वो रुजू कर लो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए, अल्लाह तुमको माफ कर देगा। और अगर तुमने इरादा कर लिया तलाक देने का, तो अल्लाह ताला खूब सुनता खूब जानता है। 4 महीने की मुद्दत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तय की थी। कई बातें ऐसी उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की अल्लाह सुब्हान ताला को बहुत पसंद आती थी, अल्लाह ने उसको कुरान में उतार दिया। वो क्या था कि एक मरतबा जो है यानी कि किसी जो है किसी औरत की ऐसी कुछ क्या कहते हैं शिकायत जो वो अल्लाह से कर रही थी, उमर रज़ी अल्लाह ने सुन लिया कि वो अपने शौहर को याद करके रो रही है ऐसा वैसा। तो उन्होंने अपनी बेटी से जाके पूछा, अच्छा तुम बताओ कोई भी बीवी अपने शौहर से कितने दिन तक दूर रह सकती है? तो उन्होंने कहा कि 4 महीने तक। तो उमर रज़ी अल्लाह ने जब से एक हद बांधी, कोई भी फौजी सरहद पर 4 महीने से ज्यादा नहीं रुकेगा। सोचिए, ये अल्लाह सुब्हान ताला ने अगर कोई हुक्म मुझे और आपको दिया है उसमें बहुत हिकमतें हैं। ठीक है, एक औरत इतने दिन तक बर्दाश्त कर सकती है, उसके बाद समझिए कि कंप्लीटली ये इस आयत की रोशनी में अगर आप देखो कंप्लीटली कोई कांटेक्ट नहीं है, बंदा कहाँ है कोई खबर नहीं, तो अल्लाह ने कहा 4 महीना इंतजार करे, उसके बाद खत्म, रिश्ता तो यही खत्म हो जाएगा। सोचिए कहाँ फिर ये चीजें हमको, ये जो हमारे मुल्क का एक रिवाज के आदमी कमाने के लिए 2-2, 3-3, 5-5 साल तक बाहर जाता है, ये कहाँ से लोगों ने लेकर आए? ये क्या है? ये तो ख्वाहिशात की पैरवी है ना, है ना? तो ये इन चीजों से बहुत ही अल्लाह ताला मना करते हैं इन चीजों के लिए। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो फिर उसके बाद देखिए ये भी अल्लाह ने कैसे औरतों के हक में बात की है ना। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो, अब आप सोचिए ना, इतनी खूबसूरत आयतें जब हर मुसलमान को पता चल जाएगी, कोई औरत गैर लोगों से जाएगी अपने हक मांगने को? कभी नहीं। रीड करते नहीं, कुरान को समझते नहीं, हाँ मसले मसाइल सीखते नहीं, और बिना वजह निकल जाते लोगों की बेकार चीजों में जो है यानी कि प्रोटेस्ट करने के लिए या फिर उनका साथ देने के लिए बेकार चीजों में। एकदम ऐसी चीजों का हिस्सा मत बने आप लोग कभी। ठीक है, आगे अल्लाह सुब्हान ताला चलिए बड़ी खूबसूरत तरीके से अब यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए अब ध्यान से सुनिए, तलाक की स्पेशली बात अब यहाँ से शुरू हो रही है आयत नंबर 228 से। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हाँ मुतल्लका औरतें जो है वो खुद से जो है यानी कि 3 है यानी कि 3 पीरियड्स आने तक इंतजार करें, और नहीं है हलाल उन औरतों के लिए कि वो छुपाएं जो अल्लाह ने उनके पेट में पैदा किया है, अगर वो ईमान रखती है अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और उनका शौहर ज्यादा हकदार है उनको लौटा ले जाने का। हाँ, इसमें इस बात में कि वो दोनों इरादा करते हैं किसका? इस्लाह करने का, यानी वो इस्लाह कर लेंगे, और उनके लिए भी हक है वैसा ही उन औरतों पर कैसा? दस्तूर के मुताबिक। ये क्या बात हुई कि भाई अगर किसी मुतल्लका औरत यानी अगर किसी की तलाक हो गई है तो वो इद्दत की बात है, ये लिखे यहाँ पर इद्दत कितना? 3 पीरियड्स आने तक। अच्छा, किसी को पीरियड्स ना आता हो तो 3 महीना इंतजार करेगी। अब क्या हो गया? अब अल्लाह ताला ने अगर उसको कोई प्रेगनेंसी रखी है उस हस्बैंड से, तो वो छुपाए ना। अब आप बोलोगे ये छुपाएगी क्यों? जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसकी तलाक हुई है तो उसकी जो इद्दत है ना वो डिलीवरी तक हो जाती है। तो कोई औरत ये सोच के
मैं हामला हूँ, अब मेरे को डिलीवरी तक वेट करना पड़ेगा, इद्दत करना पड़ेगा, तो जल जाने उस आदमी से ही छुपा लूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसा वो नहीं कर सकती, अगर ईमान वाली होगी तो उसको ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि भाई तलाक हुई है तो वो शौहर है ना, अब बाप बनने वाला है, तो उसकी मोहब्बत में वापस ले जाए उसको। ऐसा अल्लाह ने रास्ते रखे बहुत, ठीक है। और यकीन करें, जो तरीका कुरान में तलाक का दिया गया है, अगर कोई भी मुसलमान उसको फॉलो करे तो किसी घर में तलाक हो ही ना। आज तलाक कहाँ से सीखा लोगों ने? मीडिया से। क्या? तलाक तलाक तलाक, मैंने तुम्हें तलाक दी, बिजली कड़की, बारिश हुआ, फिर उसके बाद वो रोते धोते आ रही, एक पोटला उठाई, सूटकेस उठाई, मैं चली मायके, तुमने मुझे तलाक दे दिया। यहाँ से आज मीडिया से लड़कियों ने सीखा है तलाक ऐसी होती। जी नहीं, ये तलाक का बिल्कुल तरीका नहीं जो मीडिया आज दिखा रहा है। फिर वो गाने बजते सनम बेवफा और ये और वो इस तरीके से। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत तरीके से और बहुत अच्छे अंदाज में इसमें जो है वो बयान किया है, ठीक है। चलिए, अब अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो, अब तलाक मर्रतान, बस भाई तलाक तो 2 ही मर्तबा है। ये कौन सी तलाक है? तीसरी तलाक का तो कोई तसव्वुर ही नहीं है दीन इस्लाम में। तलाक 2 ही मर्तबा है। ये कौन सी तलाक है कि भाई देखो 3-3 महीने का पीरियड तुम्हें दिया जाएगा, रुजू करते हो वापस। रुजू करने का मतलब क्या है? इंटरकोर्स होना चाहिए, हम बिस्तरी शर्त है। कुछ लोग रुजू मतलब आके रहने लगी घर में, बस हो गया, ऐसा नहीं चलता है कि घर में आके लड़की रहने लगी। जी नहीं, बल्कि उनके ताल्लुकात होने चाहिए, उसको कहा जाता है रुजू करना। अल्लाह ताला फरमाते हैं तलाक तो खैर 2 ही मर्तबा है। फिर अगर समझिए कि 2 मर्तबा किसी, अच्छा 2 मर्तबा भी बैक वक्त नहीं, तलाक तलाक बोल के नहीं। एक तलाक देगा 3 महीना अपने घर में ही रखेगा, फिर एक तलाक देगा, फिर 3 महीना रखेगा। अब वो नहीं रुजू कर रहा है, नहीं उसके साथ हम बिस्तरी कर रहे हैं, अब ऑटोमेटिकली हो जाएगी तलाक। जरूरत नहीं तीसरी दफा उसको बोलने की, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोग जो तलाक की डिटेल मैंने उसमें दी है ना, प्ले लिस्ट में जाकर आप देखिएगा, ठीक है। तलाक तो 2 ही मर्तबा है। रिश्ता बरकरार रखना हो तो अल्लाह ताला कह रहे हैं फिर रोक लो उसको अच्छे से, उस औरत को, या अगर नहीं रखना है तो रुखसत कर दो उसको एहसान के साथ। और नहीं हलाल है किसके लिए? अब वो जो उसका शौहर था उसके लिए ये चीज हलाल नहीं है कि तुम ले लो उसमें से जो तुमने उसको दिया है कुछ भी। क्या बात है, ये देखिए अल्लाह ताला बोल रहे हैं तुमने उसको मेहर दिया, तोहफे तहाइफ दिए, कुछ भी है ना, उससे कुछ भी तुम ले नहीं सकते। अब आप सोचें समाज में कितनी बुराइयां हमारी। लड़की का जहेज तो सब भेज देंगे, लेकिन सास वो कड़े नहीं भेजती है जो उसको शादी में मिले थे, वो देने को तैयार नहीं रहती सास। वो तो पहने रहूंगी तो मुझे गिफ्ट मिला था। भाई जब तुम दे रहे तो सारी चीजें दो ना। ये क्या तुमने उसके जहेज का सामान दे दिया और उसके दिए हुए, उसके बाप के दिए हुए तुम कड़े नहीं दे रहे हो, उसको पहने हो। हाँ, तो आप बोले कुछ भी नहीं लेना है तुम्हें। अच्छा हाँ, इल्ला मगर के डर हो तुम दोनों को कि तुम हुदूद को कायम नहीं रख सकोगे। फिर अगर डर हो कि नहीं तुम अल्लाह के हदों को कायम रख सकोगे, फिर इस बात में कोई गुनाह नहीं है उन दोनों पर कि इस बारे में किसी दिया दे दे उसको। यहाँ पर आज देखिए कि समाज में इसको जो है वो खुला कहा जाता है। तो लड़की तलाक दे नहीं सकती लेकिन खुला दे सकती है। ये क्या होता है? ये बला है कि लड़की रहना नहीं चाहती तो भाई लड़के का इतना सब खर्चा पानी दे ना, उसका उसने शादी में खर्चा किया सब ना, तो वो लड़की को भरपाई करके उस लड़के को देना पड़ता है। अगर वो खुद सेपरेट होना चाहती तो वो खुला ले सकती है। क्योंकि ऐसी उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के टाइम पे एक मसला आया था। वो औरत आई, मैं नहीं रहना चाहती हूँ, मैंने कभी इसके साथ सुकून से नींद नहीं ली है। वो तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या कहा, अच्छा ठीक है इसको ना वो होता है ना घोड़े लोग को जहाँ बांधते, क्या बोलते हैं इसको, जगह जो होती है ना उसके घोड़े को रखने की, हाँ, तो वहां पे बोले कि इसको ले जाकर है ना रात भर जो है इसको छोड़ के आओ। अब उसने क्या किया, वो जो शख्स था उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिसको भेजा, वो रात भर उस औरत को वहीं पर जानवरों के बीच में छोड़ दिए। सुबह उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इससे पूछा रात कैसे गुजरी? मुझे इतने सुकून की नींद में सोई कि इससे पहले कभी नहीं सोई। तो उनको ये पता चल गया कि इसका शौहर अच्छा नहीं है, तो फिर उसको उसके शौहर से इलायदा करवा दिया गया। इस तरीके से देखिए बहुत आसानी अल्लाह ने रखी है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये अल्लाह की हदें हैं, तुम जो है इससे हद से मत बढ़ो, और जो कोई भी अल्लाह की हदों से आगे बढ़ेगा फिर यही लोग जालिम हैं। अब देख रहे हो कि अल्लाह के हुदूद की बात चली आ रही है कि अल्लाह की हद से आगे मत बढ़ो, अल्लाह की हद से आगे मत बढ़ो, क्योंकि जो अल्लाह के हद से आगे बढ़ता है फिर बाद में वही नुकसान उठाता है। ठीक चले,
अब उसके बाद ये जो है ना आयत नंबर आप देख सकते हो 230 को आप टॉपिक देख सकते हो, ये है हलाला, जो हमारे समाज में इसको हलाला कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या है इंशाल्लाह देखते हैं। अल्लाह ताला, अब क्या होता है कि अब शौहर को रियलाइज हो गया, अरे भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर अब मैं क्या करूं। अब देखिए कि अगर समझिए कंप्लीटली तलाक बाइन, तलाक बाइन ये क्या होता है, ये फाइनल तलाक को कहा जाता है। वर्ड आपको जो है फाइनल तलाक को बाइन कहा जाता है। तो उसके बाद अगर वो शौहर वापस बीवी के पास आना चाहता है तो नाउज़ुबिल्लाह उसको ये अमल करना पड़ेगा। क्या है, चलिए देखते हैं। फिर अगर तुम तलाक दे दो अपनी बीवी को और अब तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, यहाँ तक कि वो निकाह कर ले किसी और मर्द से उसके सिवा, यानी पहले शौहर के सिवा, फिर अगर वो दूसरा शौहर उसको तलाक दे दे तो इस बात में कोई गुनाह नहीं उन दोनों पर कि वो जो है वो क्या करे, रुजू कर ले, या तो वो पलट जाए अपने पहले शौहर के पास, वो दोनों रुजू हो सकते हैं। इन्ना, हाँ लेकिन यहाँ पर भी अल्लाह ने कहा है इस शर्त पे कि वो दोनों ये सोचें कि हम अब अल्लाह के जो भी हुदूद है, अल्लाह की बाउंड्रीज को हम कायम रख सकेंगे। ये अल्लाह की हदूद जो है वो बयान करता है अल्लाह अपने हदूद को किसके लिए, जो सीखना चाहते हैं, जो इल्म हासिल करना चाहते हैं। आज अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपने इसको सीखने की तरफ रखी, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, अब याद रखिए यहाँ पर कंडीशन आज ये है कि कुछ शर्त भी आती बोलते हुए कि कुछ दीनदारों ने इसको अपना पेशा, अपना कारोबार बनाया है, समझ लो। अच्छा ठीक है, हलाला करने का, ठीक है, मेरे से निकाह पढ़ा दो, फिर मैं ही एक ऐसे जो है वो शख्स के बारे में पता है हम लोगों जानते हैं हम लोग कि वो हलाला जैसा बिजनेस करता है, जबकि अल्लाह के रसूल ने क्या कहा कि हलाला करने वाला करवाने वाला कौन है, सांड है। अल्लाह के रसूल को इतना गुस्सा आता था जो लोग इसको बिजनेस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, सांड के पैसे, सांड है वो और हराम की कमाई खाता है। याद रखिए ये जो आज हमारे माशरे में आम है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। नेचुरली अगर ठीक है उससे निकाह हो गया है तो दो शर्त है, या तो वो फौत हो जाए या तो वो खुद से तलाक दे, जबरदस्ती नहीं। और अक्सर जो लोग ये करते ना, अच्छा ठीक है मौलाना साहब मेरी बीवी का हलाला कर दो, मेरे को वापस निकाह करने का, वो मौलाना साहब मजे लेते रहते, छोड़ते ही नहीं, फिर नहीं छोड़ते। निकाह करा दो मेरे साथ और फिर उसके बाद जो है मैं हलाला करूंगा, उसको तलाक दे दूंगा, फिर तुम उससे निकाह कर लेना। मौलाना लोग छोड़ते नहीं और पूरा कई सालों तक ऐसे मजे लेते रहते उस औरत के साथ। उसको पेशा बना लिया लोगों ने, पैसे भी हड़पते रहते। कभी इन चीजों में ना पड़े, अल्लाह के वास्ते ना पड़े। ठीक है, आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और अगर देखो वह इधर सॉरी आगे अगली आयत पर चलते हैं 231 पर। और जब तलाक दे दो तुम अपनी बीवियों को और वो अपनी इद्दत पूरी कर ले, ठीक है, तो फिर फअमसिकुहुन्ना, फिर रिश्ता बरकरार रखना हो तो उन्हें अच्छे तरीके से रोक लो। फिर दोबारा बात आई, या उन्हें अच्छे तरीके से जाने दो। अब देखो अगर तुम्हें रोकना है और नहीं तुम रोको उनको इस गर्ज से कि तुम उनको सताते रहो, उनके ऊपर ज्यादती करो, और सुनो जो भी करेगा ये तो दर हकीकत उसने अपने ऊपर बहुत जुल्म किया। ठीक है, और जो है वो याद रखो अल्लाह की नियामतों को जो उसने तुम पर किया, और माफ और नहीं, और जो नाजिल किया उसने तुम पर किताब और हिकमत, और नसीहत करता है इसके जरिए, और डर कर अल्लाह से डर डर कर जिंदगी गुजारो, और जान लो कि अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। जी हाँ, कोई कितना भी छुप छुपा के कुछ भी कर ले, अल्लाह ताला बोल रहे हैं मैं सब पूरा इल्म रखता हूँ। तो बहुत ही आसान तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए कि इस बात को वाज़ेह कर दिया है, लेकिन लोगों ने इतना ज्यादा इसको मुश्किल बना दिया, बहुत ही ज्यादा। फिर ऐसे कुछ एक केसेस हमारी क्लास में किसी का सुनने मिला था, कोई एक फिरका है इसका मुसलमान का कि तलाक होती है तो आकर उसके, अब बंदा किधर है क्या मालूम, उधर उसने अपने दोस्तों में, यारों में, रिश्तेदारों में बोल दिया अरे मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, और यहाँ पे आके उसके ऊपर व्हाइट कपड़ा डाल दिया जाता है और वो इस चीज का निशानी होता है कि तेरी तलाक हो गई है। मतलब क्या है, दीन का खेल मजाक बना रखा है। और आप नोट करिए कि कितनी दफा इन आयतों में अल्लाह ताला बोल रहे अल्लाह की हुदूद, अल्लाह की बाउंड्रीज को पार मत करो, अल्लाह की हुदूद का पामाल मत करो, अल्लाह के हद में रहो। याद रखिए कि अल्लाह ने जो हुदूद रखे हैं, जो शराइत रखे हैं, इंसान जब उसको फॉलो करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके की परेशानियों से अल्लाह उसको बरी कर देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमारा पौना सिपारा अल्लाह के हुक्म से कंप्लीट हो गया 231 तक।
جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.